जाता है, क्योंकि अब समाज के सामने कैसे हाथ फैलाएं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम मित व्ययी नहीं है। अगर हम बजट बना करके चलेंगे तो ये दिक्कत हमारे साथ नहीं आएंगे। लेकिन हम करते क्या है, आज साइकिल है, चलो अब स्कूटर ले लो, अब स्कूटर है, चलो अब पैसा तो आ ही गया है, बहुत आ गया, चलो अब गाड़ी ले लो, अब गाड़ी आ गई है, चलो अब तो पैसा है ही, अब ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। इस तरह से हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो किसी कवि ने भी कहा है इसके लिए, इसकी उपमा दी है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत पुनि ना घटे जड़ समेत कुमलाए। जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति के महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, खर्चा बढ़ता है। लेकिन जैसे ही अगर संपत्ति कम होती है तो उसकी वो इच्छाएं कम नहीं होती हैं। जिस प्रकार की कमल जो है, जैसे जैसे जल बढ़ता है वैसे वैसे वो बढ़ तो चला जाता है, लेकिन जैसे ही पानी का स्तर कम होता है तो वो फिर कम नहीं होता, वो कुमला जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हमें भी नित्य व्ययी बन करके चलेंगे, बजट बना करके चलेंगे तो हमें इन परिस्थितियों से सामना नहीं करना पड़ेगा। हम भी सुखी रह सकेंगे और परिवार को भी सुखी रख सकेंगे। దాంట్లో మూడో నియమం ఏంటంటే మితి వ్యయత, మనం తక్కువ ఖర్చు చేయటం. ఈరోజు వ్యక్తికి 1000 రూపాయలు వచ్చినా అతనికి సరిపోవట్లేదు, 1,00,000 రూపాయలు వచ్చినా అతనికి సరిపోవట్లేదు, 1 కోటి రూపాయలు వచ్చినా అతనికి సరిపోవట్లేదు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి తక్కువ అవుతున్నాయి. కారణం అతనికి ఏ విధంగా అయితే ధన సంపాదన పెరుగుతుందో అతని అవసరాలు కూడా అదే విధంగా పెరుగుతున్నాయి. కానీ మనం ఒక బడ్జెట్ ప్రకారంగా ఒక నియమితంగా మన ఖర్చులు మనం నియంత్రించుకోవాలి. ఎప్పుడు మన ఖర్చులు మనం నియంత్రించుకున్నా ఉంటే మన అవసరాన్ని మనం తగ్గించుకున్నప్పుడు, ఎవరైతే మితి వ్యయ అవుతారో, ఎవరైతే తక్కువ ఖర్చు చేస్తారో వాళ్ళు సుఖంగా ఉంటారో, వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళు సమాజాన్ని ఉద్ధరించుకోగలరు, సమాజం కోసం వాళ్ళు దాన్ని వినియోగించగలరు. మదన్ మోహన్ మాలవ్య గారు ఆయన తక్కువ ఖర్చు చేసే సమాజానికి ఒక పిలుపునిచ్చారు, మీరందరూ కూడా మితవ్యయులై తక్కువ ఖర్చు చేసి మీరు మీ జీవితాన్ని గడపండి అని. అట్లాగే ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ గారు, ఆయన 500 రూపాయలు సంపాదించేవాళ్ళు, కానీ తన కోసం ఓన్లీ 25 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుని మిగతా 475 రూపాయలు సమాజంలో ఏ పిల్లలకైతే చదువుకోవటానికి ఆధారము లేదో వాళ్ళ కొరకు ఆయన దాన్ని ఖర్చు చేసేవాళ్ళు. ఎప్పుడైతే మన ధనం పెరుగుతుందో మన ఖర్చులు పెరుగుతాయి, ఖర్చులతో పాటు మనకి చెడ్డ అలవాట్లు కూడా అలవడతాయి. ఆ చెడ్డ అలవాట్ల కోసం మనం ఇంకా ధనాన్ని ఖర్చు పెడతాం. ఒకరోజు మనం ఆ ధనాన్ని అంతా, మన సంపద అంతా అంతటికున్న ఖర్చు చేసి మనం రోడ్డు మీదకి వస్తాం. ఆ రోడ్డు మీదకి వచ్చిన ఈ రోజు నేను సమాజాన్ని ఏ విధంగా చూడాలి, నా మొహాన్ని ఏ విధంగా చూపించాలి అనే బాధతోటి ఉరి వేసుకునే పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి. మన ఏదైనా సరే మన ఖర్చు అనేది ఒక బడ్జెట్ ప్రకారం మనది జరగాలి. ఈ రోజు మనకి సైకిల్ ఉంది, ధనం వచ్చింది కదా అని స్కూటర్ తీసుకుంటాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్కూటర్ కాదు, ఇంకా డబ్బులు వచ్చినాయి కాబట్టి మనం కారు కొందాం. ఆ కారు కొనడంతో మనం తృప్తి పడం, మళ్ళీ ఆ కారులో మనకి ఏసీ ఉండాలి. ఈ ధనంతో పాటు మన అవసరాలు మనకి పెరుగుతూ ఉన్నాయి. కానీ కబీర్ ఏం చెప్పారంటే, ఎవరైతే వాళ్ళ సంపత్తితోటి మహత్వాకాంక్షలు పెంచుకుంటూ వెళ్తారో అలా పెంచుకోకుండా, అలాగే సంపత్తితోటి మహత్వాకాంక్షలు పెరుగుతున్నాయి. ఎప్పుడైతే ఆ సంపాదన తగ్గిపోతుందో మన కోరికలు కూడా తగ్గిపోవాలి. ఏ విధంగా అయితే తామర పువ్వు జలం పెరుగుతుందో, నీరు పెరుగుతుందో ఆ కొలంలో, అది కూడా పైకి లేస్తుంది. ఆ నీరు తగ్గంగానే ఆ తామర పువ్వు కిందకి రాదు. కిందకి రాకపోతే ఏమవుతుంది, అది ఎండిపోయి దాని అస్తిత్వాన్ని కోల్పోతుంది. మనం కూడా అది ఏ విధమైతే మన ధన సంపాదన ఉంటుందో మన ఖర్చులు కూడాను అదే విధంగా ఉండాలి. మన సంపాదన ఏ విధంగా ఉంటే ఆ బడ్జెట్ ప్రకారం మన ఖర్చులు కూడా మనం నియంత్రించుకోవాలి. चौथा सूत्र है सहकारिता। हमें मिलजुल करके रहना चाहिए, परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल करके रहें, सबका सम्मान करें, किसी की उपेक्षा करें न करें। अरे ये जो छोटा बच्चा है उसको हम उपेक्षित कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये वृद्ध है, बूढ़ा है, इसलिए उसकी उपेक्षा कर दें, ऐसा नहीं। सबका हमें सम्मान करना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, सहकारिता की भावना होनी चाहिए, मिलजुल करके हमें बांट करके खाना चाहिए, रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सभी सदस्य मिलकर के ही परिवार बनता। अगर बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या परिवार क्या कहलाएगा, वो क्या करेंगे, नहीं। अगर बहनें हो जाएंगी तो नहीं, केवल भाई बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे तो नहीं। जिसमें बच्चे भी हो, वृद्ध भी हो, जवान भी हो, वो सब मिलकर के क्या बनता है, परिवार बनता है, ठीक ना। तो उन सबको मिलकर आपस में एक दूसरे की सहयोग की भावना, सहकारिता की भावना, सबकी अपनी अपनी खासियत है। अगर बच्चे न हो तो कैसे काम चलेगा, या घर में कोई बुजुर्ग ना हो तो हमें कैसे कोई सलाह देगा, और घर में अगर कोई जवान ना हो तो कोई परिश्रम मेहनत करने वाला काम कौन करेगा। इसलिए सबको काम करना है और सबकी अपनी
आवश्यकता है, इसलिए सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। तो गुरुदेव ने एक दृष्टांत दिया था कि जिस प्रकार एक मतलब कहानी आपको बताएंगे, वैसे तो आपका टाइम हो रहा है तो इसको हम इसको केवल सूत्र ही देंगे आपको, ठीक है ना, आगे दृष्टांत नहीं बताते हैं कि हमें सबको मिलजुल करके हमें काम करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं, बड़े भाई हैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको वो करें, और बड़े हैं तो बुजुर्गों की सेवा करें, तो उनको मतलब एक दूसरे की प्रगति में सहायक बने और एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि उसी में ही हमारी वो है। हम तो सहयोग हमें एक दूसरे का करना चाहिए। सहयोग की का मतलब जो है उसका जो भाई साहब कह रहे हैं तो हम आपको दृष्टांत बता देते हैं, फिर उसके बाद में एक सूत्र है वो हम दोनों बता देंगे, दोनों का आप कर लेंगे, ठीक है। तो सहयोग के अंतर्गत गुरुदेव एक दृष्टांत दिया करते थे कि एक बार ये जो गणेश चतुर्थी अभी आने वाली है, गणेश चतुर्थी का दिन था, तो कहने लगे भाई कि आज लड्डू बनेंगे, लेकिन जो हाथ की जो 5 अंगुली थी उनमें 5 में झगड़ा हो रहा था। क्या हो रहा था? ये छोटी बोलती है मैं बड़ी हूँ, तो ये तर्जनी बोलती है नहीं मैं बड़ी हूँ, तुम कैसे बड़ी हो, बड़ी तो मैं हूँ। तो मध्यमा बोलते नहीं तुम कोई बड़ी नहीं हो, मैं बड़ी हूँ। तो अनामिका बोलती है नहीं तुम बड़ी नहीं हो, मैं बड़ी हूँ। तो इस तरह से सब बोले तो अंगूठा बोलता है, बोले अरे जाओ तुम कोई बड़ी नहीं हो, बड़ा तो मैं हूँ। तो आपस में सबके झगड़ा हो रहा था। तो बोले अच्छा ये बताओ कैसे बड़े हो, अपनी बड़ी की कुछ बात तो बताओ कि कैसे बड़े हो तुम। तो जो छोटी थी उसने कहा पता है जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो इसी अंगुली पे उठाया था, इसलिए वो सम्मान मुझे मिला हुआ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। तो बोले हाँ ये बात तुमने ठीक कही है। तो बोले अच्छा, तो जो अनामिका थी वो भी चुप रहने वाली नहीं थी, वो बोले अरे जाओ तुम कोई बड़ी नहीं हो, बड़ी तो मैं हूँ। बोले तुम कैसे बड़ी हो? बोले पता है जब किसी का सम्मान किया जाता है तो सबसे पहले मैं ही आती हूँ तिलक लगाने के लिए। बोले हाँ ये बात तुमने ठीक कही है। जितने में वो मध्यमा थी वो बोलती है अरे तुम कोई बड़ी नहीं हो, बड़ी तो मैं हूँ। बोले तुम कैसे बड़ी हो बताओ। तो बोले प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, दिखने में ही बड़ी हूँ। बोले हाँ ये बात तुमने ठीक कही है। जितने में जो ये तर्जनी थी वो बोलती है अरे कोई तुम बड़ी नहीं हो, बड़ी तो मैं हूँ। बोले तुम कैसे बड़ी हो बताना जरा। बोले पता है भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र इसी अंगुली पे उठाया था, इसलिए मैं बड़ी हूँ। बोले हाँ ये बात तुमने सबने ठीक कही है। ये तो अंगूठा था वो भी चुप रहने वाला नहीं था। बोले अरे जाओ तुम कोई बड़ी नहीं हो, सबसे बड़ा तो मैं हूँ। बोले तुम कैसे बड़े हो बताओ। तो बोले पता है चाहे कितना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब किसी रजिस्ट्री की आवश्यकता पड़ती है या कोई आवश्यकता पड़ती है किसी निशान तो ये अंगूठा ही लगाया जाता है, दूसरा नहीं लगाया जाता है, इसलिए सबसे बड़ा तो मैं हूँ। बोले हाँ ये बात तुमने ठीक कही। झगड़ा चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि जब आया कि नहीं लड्डू बनाने हैं तो वही झगड़ा करते करते किचन में पहुंच गए। बोले अब लड्डू बनाओ, कैसे बनता लड्डू। तो उससे कहा बोले अरे छोटी तुम बनाओ, तुम बड़ी हो ना सबसे, चलो तुम बनाओ। अब उसने बनाना शुरू किया, कहाँ लड्डू बनने वाला। बोले मैं नहीं बनाती। जितने में बोले अच्छा तुम बड़ी हो तुम बनाओ, उसने भी अपना प्रयास कर लिया, सबने अपना अपना प्रयास कर लिया, लेकिन किसी से लड्डू नहीं बना। तो आखिर फिर ये हुआ समझौता कि भाई देखो ऐसे एक एक करेंगे तो लड्डू तो बनने वाला नहीं है, और लड्डू बनाना जरूरी है, तो क्या करें। बोले हम आपस में मिल जाएं। बोले हाँ ये बात ठीक है, सब मिल जाओ। तो जैसे ही सब मिले वैसे ही लड्डू बनते हुए चले गए और लड्डू का ढेर लग गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो संगठन शक्ति, चाहे हम छोटे बड़े सब मिलकर के जब संगठित हो जाते हैं तो उसमें मजबूती आ जाती है। मुट्ठी में मजबूती है, हाथ में मजबूती नहीं, लेकिन मुट्ठी में मजबूती है। लड्डू फटाफट बन गए। तो ये किसी कवि ने भी इसके लिए कहा है, क्या कहा है कि रहीमन बड़ेन को देख के लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। मतलब बड़े को देख करके छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व है।
छोटे का अपना महत्व है, बड़े का अपना महत्व है। जहां तलवार काम आने वाली है वहां तलवार ही काम आएगी। अगर आपको युद्ध करना है तो वहां सुई से काम नहीं चलेगा, और अगर आपको कपड़े की सिलाई करनी है तो वहां तलवार से काम नहीं चलेगा, वहां सुई ही काम आएगी। इसलिए सबकी अपनी उपयोगिता है, और सबकी अपनी उपयोगिता के कारण हमें मिलजुल करके रहेंगे तो हम एक दूसरे का काम बना लेंगे। और लेकिन अलग अलग रहेंगे तो आवश्यकता पड़ेगी तो कोई किसी का साथ फिर नहीं देगा। इसलिए हमें मिलजुल करके रहना चाहिए। कागज की अपनी उपयोगिता है, लेखन की अपनी है, लेकिन अगर मान लो हमारे पास कागज है, कलम है, सब कुछ है, लेकिन दिमाग नहीं चल रहा है तो हम